خواتین حضرات خوش آمدید، آداب، گڈ مارننگ، السلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے ہو۔ آپ اس وقت نشریات دیکھ رہے ہیں اپنی من پسند ٹیلی ویژن چینل گلستان نیوز پر۔ سلام جے کے اور سلام جے کے لے کر میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق گوہر۔ حسب معمول اور حسب وعدہ آج بھی کچھ معاملات کافی اہم رہیں گے جنہیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے، تجزیہ اور تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سیاسی مبصرین ہمارے ساتھ جڑیں گے، کچھ اہم مدعوں پر بات کریں گے، کیونکہ جہاں ایک طرف سے سال 2019 ہمارے سامنے ہے اور سال 2019 کے دوران جنرل الیکشن پورے ملک کے اندر ہونے والے ہیں، اور اس سے قبل سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے لنگڑ لنگوٹ جو ہے وہ کس چکے ہیں اور لگاتار جو ہے وہ کوششوں کا آغاز وہ کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ووٹروں تک جایا جائے، ان سے ووٹ لیا جائے اور دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمانی انتخابات میں جیت کو یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں حکمت عملیوں کو مرتب کیا جا رہا ہے اور آج سب کی نظریں جہاں مرکز پر رہیں گی، کیونکہ آج مرکز کی طرف سے آخری سالانہ بجٹ جو پیش کیا جانے والا ہے، اس میں پیوش گوئل صاحب تقریباً 11 بجے کے آس پاس لوک سبھا کے اندر اپنی بجٹ سپیچ پڑھیں گے، لیکن بجٹ سے قبل کافی زیادہ سیاست ہوئی ہے اور اس سیاست پر تھوڑی سی بات کروں گا اپنی پہلی خبر میں۔ چونکہ آخری بجٹ ہے اور کل میں نے کہا تھا انٹریم بجٹ پیش کیا جائے گا، اور کل مبصرین سے جب ہم بات کر رہے تھے تو ان کا ماننا تھا کہ زیادہ کوئی فرق اس میں نہیں رہتا ہے، آپ انٹریم بجٹ کہیں یا اسے جنرل بجٹ کہیں، سرکار نے جو کچھ کہنا ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حزب اختلاف کی طرف سے زبردست ہنگامہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور احتجاجی بیانوں کے بعد اور احتجاجی بیانوں کے بیچ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بجٹ اجلاس شروع ہونے سے قبل روایتی طور پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کی اور امید ظاہر کی کہ یہ جو بجٹ سیشن ہے، اس سیشن کے دوران جو انتہائی اہم معاملات زیر سماعت ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، ان پر حتمی فیصلہ بھی لیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ سیشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار بھی ہوگا، اور ہر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ادب اور قانون و لحاظ کا پاسداری کرتے ہوئے اس اجلاس کو کامیاب بنائیں گے۔ وہیں پر کل انہوں نے اس بات کو، اس ہوا کو بھی صاف کیا کہ سرکار کوئی فل فلیج بجٹ نہیں لا رہی ہے، بلکہ صرف ایک انٹریم بجٹ ہوگا، اور یہ انٹریم بجٹ اسی طریقے سے پیش کیا جائے گا جس طریقے سے سرکاریں آج تک کرتی آئی ہیں جب چناوی سال ہوتا ہے یا آخری سال ہوتا ہے۔ اس سے قبل وزیر خزانہ پیوش گوئل صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی ہوتی ہے کہ بجٹ ہے، بجٹ آپ جیسے بھی کہیں اس کو، یہ بجٹ ہوتا ہے، جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا تھا، کوئی ووٹ آن اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن کل وزیر اعظم صاحب نے صاف کیا کہ فی الحال انٹریم بجٹ کو پیش کیا جائے گا، اور آج 11 بجے باضابطہ طور پر پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران پیوش گوئل جو ہے بجٹ کو پیش کریں گے۔ اب یہ بجٹ جو پیش ہوگا اس پر سب کی نظریں کیوں رہیں گی؟ کیونکہ آخری بجٹ ہے اور یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ کسان اور بے روزگاری دونوں مدعوں پر سرکار کی طرف سے کچھ نہ کچھ آج اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ وہیں پر انٹرنل جو معاملات ہیں، یعنی گیس، بجلی اور انٹر کنیکٹیوٹی کے معاملات کو لے کر بھی جس طریقے سے اشاروں میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے رہیں گے، اس پر بھی کہیں نہ کہیں گفتگو جو ہے وہ آج ہوگی۔ ہماری پوری نظر اس پر رہے گی، اور بجٹ کے اندر کیا کچھ ہے آپ کو براہ راست گلستان نیوز جو ہے وہ لوک سبھا سے دکھائے گا، اور اس کے بعد جو رد عمل ہوگا اس پر بھی ہم لگاتار بات کریں گے۔ تو یہ بات تھی انٹریم بجٹ کی جو آج پیش ہونے جا رہا ہے، اور اس سے قبل 2-3 باتیں کافی اہم ہیں۔ این ڈی اے کی جہاں تک ہم بات کریں، این ڈی اے کے اندر کل ڈنر ڈپلومیسی کے دوران ایک بڑی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ شریمنی اکالی دل جو ہے ایس اے ڈی جو ہے، انہوں نے کل این ڈی اے کی میٹنگ میں جانا پسند نہیں کیا اور خود کو این ڈی اے کی میٹنگ سے دور رکھا، اور یہ دوری کی وجہ جو ہے وہ 2-3 وجوہات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ این ڈی اے کے جو ایس ڈی اے ہے، شریمنی اکالی دل کے جو قریبی لوگ ہیں، اور جو باتیں سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پارٹی نے صرف اور صرف 2-3 مدعوں کو لے کر ہی فیصلہ لیا کہ وہ اس میٹنگ میں نہیں جائیں گی، کیونکہ اس سے قبل جب میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے وزیر اعظم اور این ڈی اے کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے آر ایس ایس، سکھ
اور ریلیجس افیئرز، سکھ مائنورٹی ریلیجس افیئرز کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے روکا جائے، بصورت دیگر وہ جو ہے وہ این ڈی اے کے اندر جو ہے وہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی، چونکہ کسانوں کو لے کر یہ پارٹی کسانوں کی ترجمانی کرتی ہے اور پنجاب کو بلانگ کرتی ہے، اس لیے کسانوں کے معاملات کو لے کر ایک اسپیشل فارمر پیکیج کی بات ہونی چاہیے تھی۔ بات ہے کہ وہ کل اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنے۔ اور تیسری بڑی بات جو کہی جا رہی ہے، ہرسمرت کور کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے، جو بائیکاٹ اور اس میٹنگ میں نہ جانے کی بات کہی گئی ہے، وہ یہ تھی کہ کچھ اور ایشوز بھی ہے جن کو لے کر بات جو ہے وہ این ڈی اے کی طرف سے صاف ہونی چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں چناؤں سے پہلے ایس ڈی اے جو سب سے پرانا ایلائی بی جے پی کا ہے، یعنی بی جے پی اور شرومنی اکالی دل بہت پرانے ایلائی آپس میں ہے، کافی عرصے سے ایک ساتھ پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن اب انہیں بھی یہ سمجھا گیا کہ 2019 کے چناؤ ہے اور اس سے پہلے ریجنل کارڈز اور ریجنل ایشوز پر بات کرنا کافی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل وہ اس ڈنر ڈپلومیسی کا حصہ نہیں بنے۔ تاہم این ڈی اے کے ترجمان اور این ڈی اے کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پہلے ہی شرومنی اکالی دل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس فنکشن کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ان کی پریئر اپوائنٹمنٹس ہے، اس لیے جو باتیں سامنے آ رہی ہے کہ شاید سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور وہ الگ ہو سکتے ہیں، ان خبروں کو انہوں نے تردید بھی کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بات بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی ہے۔ اور فٹافٹ سے تیسری بڑی خبر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ موسم کے مزاج کے حوالے سے ہے۔ دلی کا موسم جو ہے وہ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، اور دلی کے موسم کی خبر یہ ہے کہ مطلع ابر آلود ہے، دھند بھی ہے، جس کی وجہ سے صبح تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹرینیں جو ہے وہ دھند اور پور ویزیبلٹی کی وجہ سے ڈیلے کرنی پڑی ہے۔ نئی دلی سے جو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئی دلی میں ابھی دھند اور کوہرا ہے، اس کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے اور پور ویزیبلٹی کی وجہ سے جو ہے تقریباً 1 درجن ٹرینیں جو ہے وہ دلی کی اور جو آ رہی تھی مختلف شہروں سے جو آ رہی تھی وہ فی الحال ڈیلے ہے، اور ڈیلے کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹہ فی الحال بتایا جا رہا ہے۔ اور صبح صبح جو پروازیں اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے پروازیں جو چلنی تھی اس میں بھی تاخیر جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تھی کل ملا کر وہ 3 بڑی خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی نئی دلی سے، جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ تک ہم 2-3 بڑی خبریں جو ہے وہ پہنچائیں۔ اب ذرا وادی کا رخ کرتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کا رخ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے صدر ہند کی بات کریں گے، چونکہ کل صدر ہند رام ناتھ کووند صاحب نے بات کیا مشترکہ ایوان سے، انہوں نے اپنی بات رکھی اور سرکار کی کارکردگی، پالیسی پلاننگ پر انہوں نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا۔ اور رام ناتھ کووند نے کل اس جوائنٹ سیشن سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر کا بھی ذکر کیا، اور جموں کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے رام ناتھ کووند نے اس بات کو صاف کیا کہ مودی حکومت جو ہے وہ وعدہ بند ہے ریاست کے تینوں خطوں کے اندر یکجا اور یکساں ترقی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے ذاتی طور پر توجہ دی کہ کس طریقے سے جموں کشمیر اور لداخ کے اندر ترقیاتی منظرنامے کو مزید وسعت دی جائے، اور ساتھ ساتھ 80,000 کروڑ پیکیج کی اناؤنسمنٹ کی، اور اس کے بعد اور بھی پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ سیکٹر اور سینٹرل سیکٹر کے تحت پیسہ فراہم کیا گیا، اس سے انہیں امید ہے کہ ریاست کے اندر بہت جلد تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ وہیں پر انہوں نے جہاں ریاست جموں کشمیر کی عوام کو بلدیاتی اور پنچایتی چناؤ کروانے کے لیے مبارکباد دی ہے، وہیں پر انہوں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب چناؤ ہوگا وہ اور بھی زیادہ مؤثر انداز میں ہوگا، اور نان وائلنٹ طریقے سے جموں کشمیر کی عوام جو ہے وہ چناؤں میں حصہ لیں گے اور جمہوریت کی جڑوں کو اور مضبوط کریں گے۔ رام ناتھ کووند صاحب کل مشترکہ اجلاس سے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کر رہے تھے، اور جموں کشمیر کا جو ذکر انہوں نے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو بات انہوں نے کل کہی ہے۔ چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں اپنی بڑی خبر کی، اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے انکاؤنٹر کو لے کر، کیونکہ انکاؤنٹر کل رات دیر گئے پلوامہ کے اندر شروع ہوا تھا، اور اب اس میں حتمی ڈیلز جو ہے، حتمی لیڈز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور انکاؤنٹر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کل سیکیورٹی ایجنسی راشٹریہ رائفل اسپیشل آپریشن گروپ جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کو مشترکہ اطلاع ملی تھی کہ پلوامہ کے چند علاقوں کے اندر ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں، جس کے بعد بڑے پیمانے پر وہاں پر کوارڈینیٹ سرچ آپریشن کو چلایا گیا ہے۔ اور کوارڈینیٹ سرچ آپریشن کے دوران جو کل رات تقریباً 7:30 بجے شروع کیا گیا تھا، جس میں 44
पुलिस, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बाबा मोहल्ला और द्रबगाम पुलवामा का मुहासरा किया, जिस दौरान घर घर तलाशी शुरू की गई। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मिलिटेंटों ने वहां से फरार होने की काफी कोशिशें की। तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा देर तक ये ऑपरेशन चला है, जिस बीच कल ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी को भी डाउन रखने की बात कही थी और कल रात से ही यह ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। और आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बात सामने रखी गई है कि इस झड़प के दौरान 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने लिखा कि 2 मिलिटेंट जो है वो पुलवामा ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं, ताहम उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और अब इसमें एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि द्रबगाम पुलवामा में जो कल रात देर गए एनकाउंटर शुरू हुआ था वो खत्म हो गया है और वहां से जो 2 मिलिटेंटों की लाशें मिली है उनकी शिनाख्त हो गई है। और इनकी शिनाख्त के हवाले से जो पुलिस की तरफ से बात सामने रखी गई है, शाहिद अहमद बाबा और इनायत अहमद, बोथ मिलिटेंट्स जो थे वो जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट आउटफिट के साथ ताल्लुक रखते थे। जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं पुलवामा इलाके के अंदर, जहां पर कल रात देर गए ऑपरेशन चल रहा था और उनके कब्जे से एक SLR राइफल और एक पिस्टल बरामद करने की बात और दावा जो है वो पुलिस ने पेश किया है। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर के दौरान जो राजपोरा एरिया पुलवामा के अंदर हुआ था। शाहिद अहमद बाबा और इनायत अहमद जिगर, ये नाम जो है वो सामने आए हैं। दोनों मिलिटेंट जो है वो जैश ए मोहम्मद के। हमारे साथ सईद रूफ फारूकी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से मजीद तफसीलात के लिए। सईद रूफ, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास? हमारे पास 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। खबर रसा इदारे ANI के हिसाब से दोनों की शिनाख्त जो है वो हो चुकी है। आपके पास ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर क्या कुछ है इस वक्त, और जो कल रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन अभी इस पूरे एरिया के अंदर है? देखिए गौर, ये कल रात देर गई वहां पे पहले कहा गया था कि इस एरिया में पहले सर्च ऑपरेशन हुआ था, अगर से फिर फौज वहां से निकल गई, फिर दोबारा से सर्च ऑपरेशन हुआ है, फिर लाइटिंग वाइटिंग लगा के शायद मिलिटेंट्स की प्रेजेंस उनको पता चली थी, फिर एनकाउंटर शुरू हुआ और जिसमें पुलिस के मुताबिक 2 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया है। और रात देर गई तक उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसा कहीं नहीं हो पाया कि इनकी आइडेंटिफिकेशन पर सुबह अभी है कि दोनों लोकल है और इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। देखिए गौर, जो ही एनकाउंटर होता है तो जो साउथ कश्मीर में ज्यादा देखा जाता है कि लोग वहां से निकलते हैं और वो एहतजाज करते हैं, पत्थरबाजी होती है और यही कुछ देखने को मिला वहां पे। अगरचे रात देर गए तक जो वहां पे यूथ थे वो सड़कों पे थे, वो एहतजाज कर रहे थे, वो ये यहाँ से बर्फबारी भी काफी हो रही थी, उस वजह से दुश्वारियां आई है। और अभी की एक है कि इंटरनेट सर्विस को बंद रखा गया है और ऐसा लग रहा है कि जो फोन नेटवर्क है वो भी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का डाउन है, क्योंकि हमने भी राब्ता करने की कोशिश की थी पुलिस अफसरान के साथ या बाकी के साथ, कि कोई राब्ता नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा नेटवर्क ही डाउन है साउथ कश्मीर का। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन कल शुरू किया गया था अब ऑफिशियली उसको क्लोज किया गया है और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है और दोनों की शिनाख्त जो वो हो गई है। शाहिद अहमद बाबा और इनायत अहमद के बतौर इनकी मिलिटेंटों की शिनाख्त हुई है और दोनों का ताल्लुक जो है वो जैश ए मोहम्मद तंजीम से बताया जा रहा है और दोनों के कब्जे से एक SLR और एक पिस्टल बरामद करने का पुलिस ने दावा भी किया है। तकरीबन 8 से 9 घंटे के बीच ये ऑपरेशन चला था, जिस बीच सुबह पुलिस की तरफ से यह बात सामने रखी गई कि 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं इस झड़प और एनकाउंटर के दौरान। इधर कल की अगर हम बात करें तो कल CRPF को निशाना बनाने की साउथ कश्मीर के अंदर मिलिटेंटों की तरफ से कोशिश की गई और जोरदार धमाका किया गया, हैंड ग्रेनेड दागा गया, जिसके नतीजे में कम से कम
8 افراد کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی، جن میں 2 CRPF کے جوان اور 3 خواتین بھی شامل ہے۔ تاہم یہ حملہ جو ہے وہ 96 بٹالین CRPF پر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم یہ زوردار دھماکہ جو ہے وہ سڑک پر جا کر پھٹا، جس کے نتیجے میں سویلین زخمی ہوئے۔ تاہم ابتدائی خبروں کے مطابق آج صبح بھی جو ہم نے اپڈیٹس لیے تھے، جو سپلنڈر انجریز ہوئی تھی، وہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے اس گرینیڈ دھماکے کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آؤٹ آف ڈینجر بتائے جا رہے ہیں، سیف بتائے جا رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ان کی ریکوری جو وہ ہوگی۔ یعنی کل پہلے گرینیڈ دھماکہ ہوا تھا ساؤتھ کشمیر کے اندر، اور کل ہی انکاؤنٹر بھی ہوا تھا رات دیر گئے، جس میں 2 ملیٹنٹ بھی مارے گئے تھے۔ تو کل ملا کر اینٹی ملیٹنٹ آپریشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر فی الحال لگاتار جاری بھی ہے پوری وادی کے اندر۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی، اور جو نئی دلی سے آ رہی ہے، اور خبر جو آ رہی ہے وہ NSCS کی طرف سے آ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکریٹریٹ کی طرف سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے جموں کشمیر سرکار کے نام ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط کے دوران، اس خط کے اندر جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ملیٹنسی کی وجہ سے سال 1989 کے بعد ہجرت کر کے اپنے علاقوں سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ جموں کے اندر رہ رہے ہیں یا جموں کے باہر ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر رہ رہے ہیں، کشمیری ہندو اور سکھ اس چٹھی کا حصہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سبھی لوگوں کے املاک کی مویبل اور نان مویبل جو پراپرٹی ان کی رہ چکی تھی وہاں پر، ان کا ایک تفصیلی آڈٹ اور خاکہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کو فراہم کیا جائے۔ تاہم اگرچہ ابتدائی خبروں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک سروے اور ایک ڈاٹا جو ہے وہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے مانگا گیا ہے، تاہم اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ کونسل کو یہ اعداد و شمار کیوں چاہیے اور یہ پلان جو مانگا گیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس پر اگرچہ اس چٹھی کے اندر کافی خاموشی ہے، لیکن یہ مانگا گیا ہے وزارت کی طرف سے کہ ہمیں یہ ڈاٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے کہ کتنے لوگوں کی پراپرٹی وہاں پر ہے اور اس پراپرٹی کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 15 دن کے اندر اندر ڈیٹیل جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ لیکن یہاں سے جو بات سامنے آ رہی ہے، یہ چٹھی ملی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور باضابطہ طور پر اسٹیٹ کی طرف سے اس کا ریسپونڈ آیا ہے۔ صوبائی کمشنر کشمیر کو یہ خط جو ہے وہ روانہ کیا گیا، جس کے بعد سبھی ضلع ترقیاتی کمشنروں کو کہا گیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر رپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے۔ ادھر جو صبح ہماری بات نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل کشمیر کے اندر ہو رہی تھی، تو وہاں سے یہی بات سامنے آئی کہ آلریڈی یہ ڈاٹا جو ہے ان کی ویب سائٹس پر اویلیبل بھی ہے، اور مزید اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے تاکہ تحصیل اور بلاک لیول سے پوری ڈاٹا لے کر جو ہے وہ مرکزی حکومت کو فراہم کیا جائے۔ تقریباً 30 سال کے وقفے کے بعد مرکزی حکومت جو ہے وہ کوئی ڈاٹا مانگ رہی ہے ریاستی حکومت سے، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے مانگا گیا ہے، اور کشمیری پنڈت اور سکھ جو ملیٹنسی کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے ہیں، ان سبھی لوگوں کی ڈیٹیل جو ہے لینڈ ریکارڈز، مویبل اور امویبل پراپرٹی جو ان کی ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مرکز کی طرف سے جو ہے وہ مانگی گئی ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ آئندہ 10-15 دن کے اندر اندر یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ مرکزی حکومت کے سامنے ہوگی۔ بڑی خبر اس وقت ہے NSCS کے حوالے سے، جنہوں نے جموں کشمیر گورنمنٹ کو ڈاٹا دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ چلیے اب ذرا موسم کے مزاج کی بات کریں، کیونکہ موسم کا مزاج جو ہے وہ لگاتار بدلا ہوا ہے ریاست کے اندر۔ چلے کلان تو رخصت پذیر ہوا، لیکن اس کے بعد بھی موسم میں زیادہ کوئی بہتری اور تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ چند گھنٹوں کے لیے اگر کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے ضرور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج بعد دوپہر موسم کا مزاج جو ہے وہ بدلے گا، لیکن وادی اور پیر پنچال میں تازہ برف باری ہوئی ہے۔ 9 اضلاع میں برفانی تودے گرنے کی وارننگ صوبائی انتظامیہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ 6 مقامات پر پسیاں گرانے سے شاہراہ بند پڑی ہے، اور سری نگر ایئرپورٹ پر کل 7 پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 نمائندے جڑیں گے، برامبن سے بھی ایک نمائندہ جڑے گا اور سری نگر سے بھی نمائندہ جڑے گا، تاکہ مزید تفصیلات آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ لیکن پیر پنچال کے آر پار بدھ سے جاری تازہ برف باری کا سلسلہ جمعرات کو بھی دن بھر وقفے سے جاری رہا۔ ادھر ایک مرتبہ پھر سری نگر جموں شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہے، جبکہ موسم کی خرابی کے باعث سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کئی پروازیں منسوخ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کی ہے کہ آج جمعہ سے موسم میں تبدیلی متوقع ہے، اور تازہ برف باری کے نتیجے میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت
में भी कमी देखने को मिली है। इधर हुक्काम ने कहा कि श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सुबह के वक्त कई परवाजों को कल मनसूख करना पड़ा, क्योंकि धुंध और मुसलसल बर्फ की वजह से ये करना काफी जरूरी था। बानिहाल से जो हमारे पास खबर कल पूरे दिन आती रही वो ये थी कि रामबन और बानिहाल सेक्टर में बुध की रात से ताजा बर्फबारी, बारिशों और मुतअद्दिद मकामात पर पसियां पत्थर गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर शहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जुमेरात को फिर मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम गुज़श्ता रोज से दरमांदा 1300 से जायद मुसाफिर गाड़ियों और मालबरदार गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दे दी गई। क्यों नहीं दे दी गई? क्योंकि मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ था। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है नदीम इकबाल ने। नदीम, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? जिस तरीके से लगातार हम खबर बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है, पहले मौसम के मिजाज की बात बताएं, क्योंकि माना जा रहा है कि आपका जो ये पूरा बेल्ट है, बानिहाल रामबन का जो पूरा बेल्ट है, वहां पर वक्फे वक्फे से जबरदस्त बारिशें जो है वो हो रही है, पसिया गिराने का खदशा है और टनल के आसपास ताजा बर्फबारी है। क्या कुछ ताजा तरीन डिटेल आपके पास है? जी गौहर साहब, जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें और अगर दूसरी तरफ हम मौसम की बात करें तो जवाहर टनल की बात करें, जवाहर टनल पर अभी जो ताजा बर्फबारी है 2 फुट के करीब जमा हुई है। और बानिहाल की बात करें, बानिहाल और नाचलाना में भी इस वक्त जो बर्फ जमा हो चुकी है। और रामबन और रामसू के सेक्टर के दरमियान की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर, जहां मारो की बात करें, बैटी चश्मा की बात करें, डिगडोल या पंटियाल या फिर गांगरू की बात करें तो वहां पर जो इस वक्त शूटिंग स्टोन और पस्सियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी सिलसिला में जो कल की हम बात करें तो कल गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद रखा गया था शाहरा पर। लेकिन वहीं अगर हम ट्रैफिक हुकाम की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक हुकाम की कमजोरी भी सामने आई है। अगर कल ट्रैफिक अथॉरिटीज का यह कहना था कि शाहरा पर किसी भी किस्म की गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है, वहीं अगर आज ट्रैफिक हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका यह मानना है कि पंठियाल के मकाम पर 70 गाड़ियां जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं वो दरमांदा होकर रह गई हैं। और अगर पंठियाल की बात करें तो वहां पर कोई भी रात को रहने के लिए कोई होटल वगैरह नहीं है और ना ही वहां खाने पीने के इंतजाम है, जिस वजह से मुसाफिर इस वक्त परेशानियों में मुब्तला है। और ये ट्रैफिक पुलिस की कमजोरी है कि अगर वो गाड़ियों को अलो करते हैं, एक तरफ उनका ये मानना होता है कि सोशल मीडिया के जो फेक मैसेज होते हैं उन पे अमल न किया जाए, और दूसरी तरफ अगर वो खुद ही गाड़ियों को अलो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का बायस बनता है मुसाफिरों के लिए। और ट्रैफिक हुकाम की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस वक्त अगर वो लोग आगे बढ़ें तो शूटिंग स्टोन यानी खतरा पंठियाल, और अगर वापस आए तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अनोखी फाल के मकाम पर भी इस वक्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है और शूटिंग स्टोन का सिलसिला भी जारी है। अभी चूंकि अब मौसम का मिजाज बदला हुआ तो क्या मैं ये मानूं कि श्रीनगर जम्मू शहरा पर किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं? और जो आप कह रहे हैं कि कुछ गाड़ियां दरमांदा है पंठियाल के मुकाम पर जो काफी हाई रिस्क वाला एरिया, तो उन्हें इवैक्यूएट करने की क्या कुछ प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है या अल्लाह के भरोसे ही छोड़ा गया है सबको? जी बिल्कुल गौहर साहब, जिस तरह से अभी हमारे एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे संजीव खजूरिया जी से बात हुई तो उनका ये मानना है कि ये गाड़ियां हमने अलो की ही नहीं है। तो इससे ये चीज भी सामने आती है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने इन गाड़ियों को अलो किया ही नहीं तो ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं जो अपनी ड्यूटी अंजाम देने से कासिर है, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को अलो नहीं किया तो ये गाड़ियां पहुंची कैसे। और कल 12 बजे ट्रैफिक एसएसपी नेशनल हाईवे का ये मानना था कि बानिहाल और रामबन के दरमियान कोई भी गाड़ी दरमांदा नहीं है। और अगर अभी एसएसपी ट्रैफिक खुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास 60 से 70 गाड़ियां रामसू और रामबन के दरमियान है, तो ये ट्रैफिक पुलिस की कमजोरी का सबूत देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और हल्की बारिशें हो रही है। बारिश के बीच इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोकने की बात सामने रखी गई है। श्रीनगर चलते हैं, जहां पर कल परवाजें तो मनसूख हुई थी, लेकिन सुबह से किस तरीके का मौसम है और क्या कुछ परवाजों का हाल है, इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? और कल जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह लगभग 7 से 9 परवाजें जो थी वो मनसूख करनी पड़ी थी, इस वक्त की क्या कुछ ताजा खबर आपके पास? शुक्रिया गवर साहब। जहां तक परवाजों का ताल्लुक है, जिस तरह से वादी कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और 25 साल रिकॉर्ड जो है वो इस बारी टूट चुका है, और स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से काफी ज्यादा स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। कल जिस तरह से हमने मॉनिटर किया है, मैक्सिमम जो भी एयरवेज कल टेक ऑफ होने के लिए जा रही थी, जिसमें मैक्सिमम दिल्ली, बॉम्बे या श्रीनगर दिल्ली जितनी भी फ्लाइट थी वो सारी मंसूख की गई, क्योंकि 2 बजे के बाद जो हल्की हल्की बर्फ पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो स्पीड अप एकदम से बढ़ने लगा और काफी बर्फबारी होने लगी, जिस वजह से रनवे को क्लियर करने के लिए काफी डिफिकल्टीज आई हैं। उन सिचुएशंस को लेकर जितने भी पैसेंजर्स थे वो एयरपोर्ट तक तो पहुंचे थे, मगर उसके बाद जब उनको ये क्लियरेंस नहीं मिली कि अब कोई जहाज ना आएगा ना कोई यहाँ से जा सकता है, तो काफी ज्यादा वो नाराज थे। कुछ
मैक्सिमम जो मुसाफिर थे वो परेशान हो गए कि जिनकी एकोमोडेशन नहीं थी या जिनको वापस जो टूरिस्ट है जिनकी मैक्सिमम फ्लाइट्स जो रहती है कुछ टूर एंड ट्रेवल्स को लेकर रेलेवेंट रहती है कि उनका पैकेज नहीं है तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। उनका मानना था कि इस तरह की सिचुएशन में हम काफी परेशान हैं। फिर उसके बाद हमने जब एक टेक्निकल ऑफिसर से बात की, उनसे हमने जाना कि आखिरकार रीजन क्या है, तो उनका मानना था कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है जिसकी वजह से कोई भी परमिशन नहीं मिल रही है किसी भी फ्लाइट को आने के लिए यहाँ पर। जी गौर साहब, तो अभी क्या कुछ मौसम के मिजाज का हाल है और क्या आज सुबह से कोई परवाज टेक ऑफ हो गई है? मॉर्निंग में हमने जी हाँ स्टेशन ऑफिसर से फिर बात की थी। उनका मानना था कि जिस तरह से आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 दिन के हवाले से मौसम साजगार रहने के लिए कहा है तो वो सिचुएशन आज खूब दिखाई देगी और हमें इंतजार है कि थोड़ा सा मौसम अगर साजगार होता है, ठीक होता है तो चांसेस आज ये रहेंगी कि जो फ्लाइट कल मंसूब की गई है आज उन्हें जाने और आने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बात हमको ये भी बताते चले कि कुछ निजी परवाज कंपनियों की तरफ से, कुछ एयरलाइंस की तरफ से ये बात भी सामने रखी जा रही है कि अब जो है वो एडिशनल फ्लाइट्स भी चलाई जाएंगी। लेकिन फ्लाइट्स की जहां तक हम बात करें तो पहले जरा ये भी हम आपको बताते चले कि अगर आज अभी भी आप चेक कर सकते हैं और मेरे पास जो खबर अभी भी आ रही है और सोशल मीडिया पर लगातार कुछ लोगों की तरफ से इस बात को लिखा जा रहा है कि एयर फेयर जो है, यह हवाई परवाजों का जो किराया है वो आसमान को छू रहा है। श्रीनगर जम्मू में अगर आपने कल के दिन सफर करना, आज छोड़ दीजिए, अगर आपने कल के दिन सफर करना है तो 15,000 से 17,000 के बीच में आपको एयर फेयर की टिकट जो है वो मिल सकती है। सोशल मीडिया पर इस बात पर जबरदस्त तनकीद किया जा रहा है कि जब एयर कनेक्टिविटी को लेकर जरूरत होती है तो मालिकाने एयरलाइंस जो है वो मनमानी दामों पर किराया जो है वो बढ़ा देते हैं और हुकूमत की बेबसी यहां पर साफ नजर आ रही है। इससे कबल भी रियासती हुकूमत की तरफ से मरकज के सामने ये बात रखी गई थी कि जब जरूरत होती है तो परवाजों के किराया में जो है वो बेतहाशा इजाफा होता है और मरकज ने वहां पर यह कहा था कि वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरूरत यह है कि जरूरत के वक्त अगर मरकजी हुकूमत इंटरवियर नहीं करेंगी तो हालात और कशीदा हो सकते हैं। फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर मेक माई ट्रिप या दीगर लाइंस पर जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि श्रीनगर अगर आपने जाना है तो 15 से 17,000 रुपया आपको एयर फेयर आज देना होगा, कल देना होगा। 3 दिन तक लगातार इसी तरीके के रेट जो है वो दिखाई दे रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। बात में मौसम के मिजाज की कर रहा हूं तो वार्निंग भी जारी कर दी गई है। जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा है कि सूबाई कमिश्नर के मुताबिक जिला अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बांडीपोरा, बडगाम और कुलगाम के अलावा करगिल और लेह अजला के लिए ऐसे इलाकों में जहां तोदे गिराने का अंदेशा है, इन अजला में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और नक्ल अमल पर जो है वो पाबंदी आयद करने की बात भी जो है वो कही गई है। इधर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को भी जो है वो मुतहरिक रहने के लिए कहा गया है इन बालाई इलाकों के अंदर। जो नेशनल हाईवे की बात हम कर रहे थे, इसके साथ साथ अगर मैं पुंछ राजौरी की भी बात आपको बताते चलूं तो वहां पर भी कल रात से लगातार बारिशें जो है वो हो रही हैं और बारिशों की वजह से लगातार मौसम का जो दर्जा हरारत है वो नीचे चला गया और अबूर मरूर की जो मामलात है वो काफी तंग हो गए हैं। इधर बालाई इलाके जो दरहाल के हैं, थन्ना मंडी के हैं, कोटरंका के हैं, बुद्धल के हैं, वहां पर फिर से ताजा बर्फबारी जो है वो देखने को कल पूरे दिन मिली है, जिसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर भी ठंड का असर जो है वो काफी ज्यादा था। इधर कंगन से यह इतला थी कि कंगन में कल रात देर गए थे काफी मुसाफिर जो थे वो दरमांदा हो गए थे, जिन्हें वांगत, खालगुंड और आगे पीछे जाना था क्योंकि वहां पर लोकल ट्रैफिक जो है वो सस्पेंड हो गया था बर्फबारी की वजह से। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहरिक हुई और उन्होंने इन सभी जो लोग दरमांदा सड़क पर थे उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मकामी आबादी ने जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशली कंगन पुलिस और गांदरबल पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया है। फिलहाल खबर यह है कि आज बाद दोपहर मौसम का मिजाज बदल सकता है, लेकिन फिर आगे मगरिबी हवाओं का असर होगा, फिर से बारिशें और बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल चंद दिनों के लिए राहत हो सकती है वादी के मौसम के अंदर। इधर उत्तराखंड और दीगर इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है।
चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि गवर्नर साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है और ये काफी इंपॉर्टेंट बयान है। रियासत की सियासत उस वक्त तेज हो रही है जब चुनाव है, वजीर आजम साहब की आमद है और उससे पहले गवर्नर साहब ने एक बार फिर रियासती पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ बयान है बताएंगे आपको और कुछ तज्जिया निगार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के फौरन बाद। पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब पचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए, कुछ नहीं बचेगा, आऊ अब सब बचेगा। This year marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and their parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to their parents, staff and students for their continuous support. Yuho Vast Plus by Yuho Smartphones. पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब पचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए, कुछ नहीं बचेगा, आऊ अब सब बचेगा। एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। चलिए एक बार फिर आपका इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। अब जरा बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो इस वक्त आ रही है जनूबी कश्मीर से। एनकाउंटर के बाद एक और बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से आ रही है कि कल रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक लड़की पर गोली चलाई है और रात देर गए ये वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर। अगरचे इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी कि ये खातून है कौन और किसने इस पर गोली चलाई है। ताहम अब जो खबरें आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि एक टॉप मिलिटेंट कमांडर की करीबी रिश्तेदार को मिलिटेंटों ने ही गोली मारी है और उसे हलाक किया है। क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, सीधे साउथ कश्मीर चलते हैं, पुलवामा अनंतनाग, जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, क्या कुछ खबर है, कितने बजे का यह इंसिडेंट है जब एक लड़की पर गोली चलाई गई और ये लाइव वीडियो जो है वो कल सोशल मीडिया पर वायरल काफी ज्यादा हो रहे थे। पुलिस ये कह रही थी कि अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है, क्या ये वीडियो सच्चे हैं या क्या है। आपके पास क्या कुछ ताजा तरीन खबर है और क्या शिनाख्त हो पाई है उसकी? देखिए, बिल्कुल जो एक बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के पुलवामा से, मैं आपको बता दूं कि जो टॉप मोस्ट कमांडर है अल बदर के जीनतुल इस्लाम, जो कि पिछले साल एक एनकाउंटर में हलाक हुए थे, उसके जो रिश्तेदार है, जो बताया जाता है उसकी जो रिश्तेदार है, और जो पुलिस ने खुद उसकी जो है तस्दीक भी की है। जब हमने शोपियान पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जीनतुल इस्लाम की रिश्तेदार में से एक है और इस औरत को कल शाम को नामालूम बंदूक बरदारों ने अगवा करके एक वीडियो 10 सेकंड का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो हाथ
फैला कर माफी मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो जहाँ पे इसको हलाक किया गया, जहाँ पर इसको 2 गोलियां लगी थी, वहां पर साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं पे जनूबी कश्मीर पे किसी नामालूम जगह पर इनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और आज सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर आए तो जो द्रगड़ एक इलाका है जो जैनपुरा में पड़ता है, जहां पर जीनतुल इस्लाम के आखिरी रसूमात भी वहां पर ही हुए। उनका जनाजा उसी जगह पर हुआ जहां पर उसकी लाश जो है वो रखी गई है। और जब ये खबर इलाके में फैल गई तो वहां के लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर इसकी लाश जो है वो पाई गई। ये पहली बार शायद जनूबी कश्मीर में पहली बार नजर आ रहा है कि जब एक मिलिटेंट जो एक टॉप मोस्ट कमांडरों में से एक शुमार किए जाते थे, उसकी रिश्तेदार है ये। और पुलिस ने इस बात की तस्दीक भी की है। हालांकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का ही वीडियो सामने आया है, लेकिन उस 10 सेकंड के वीडियो में वो ये जो औरत है ये हाथ फैलाकर कहीं ना कहीं पे ये इसकी क्या शिनाख्त हो पाई है कि कौन थी ये, क्या इसका नाम आया है और किस एरिया में इसको अगवा किया गया था? देखिए, ये बताया जाता है कि इसको अपने घर से ही जहाँ पे ये रहती है बताया ये जाता है कि ये जैनपुरा के आसपास के किसी गांव में रहती है और वहां से इसको शायद अगवा किया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक उस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने इस लाश के हवाले से बात की तो उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि गोली से छलनी एक औरत की लाश जो है वो द्रगड़ इलाके में पाई गई। और अभी हम उसको आखिरी जो कागजात जो उनके कागजात है वो बनाए जा रहे हैं और उसके बाद उसकी लाश जो है घर वालों को सौंपी जाएगी। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि ये जनूबी कश्मीर से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो टॉप मोस्ट कमांडर जो है जीनतुल इस्लाम की रिश्तेदार जो है उनमें से एक ये औरत है। और लेकिन उस 10 सेकंड सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के उस चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह आ रही है कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर के करीबी रिश्तेदार पर मिलिटेंटों ने कल गोली मार दिया और ताजा खबर के मुताबिक फिलहाल पुलिस महवे इन्वेस्टिगेशन है कि किस तरीके का यह मामला है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि कल उसका अगवा हुआ था और कल रात ही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी आए थे। आते हैं अपनी एक और बड़ी खबर की ओर, क्योंकि गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का बयान काफी अहम है और यह बयान उस वक्त आया है जब रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा वजीर आजम करने वाले हैं। और उससे पहले एक बार फिर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 2-3 बातें काफी अहम कही है। एक ये कि करप्शन की जड़ें काफी मजबूत रियासत के अंदर है, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें जो हैं वो खून की होली खेलकर अपने आप को बचाना चाहते हैं और खुद को मालदार बनाना चाहते हैं। इस तरीके का इल्जाम जो है वह गवर्नर साहब की तरफ से लगाया गया। और तीसरी बात, जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि आजादी मांगने वाले पाकिस्तान जाए, मसला कश्मीर दिल्ली के मर्जी के बगैर और हल नहीं हो सकता और मसले कश्मीर के लिए जरूरी है कि साजगार माहौल को पैदा किया जा सके। और साथ साथ कल गवर्नर साहब ने इस बात को भी दोहराया कि वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कानून और आईन के दायरे में सब कुछ होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मौका परस्त जमातें हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल ये एक बार फिर बात अपनी दोहराई है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दिल्ली की साबिक मरकजी हुकूमत को वादी के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार करार देते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इलाहिदगी पसंद नौजवानों को ये जानना चाहिए कि बंदूक उठाने से कोई मसला हल नहीं होगा और बातचीत से ही मामलात का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की खबरें आ रही है कि 300 मिलिटेंट अभी भी एक्टिव है, वो ये जान ले कि आज तक कितने मारे गए और भी लोग मारे जाएंगे, लेकिन हल कैसे निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका परस्त सियासत दान करार देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के बरसर इख्तिदार रह चुके कुछ सियासी जमातें मसले कश्मीर को सही सिमत में और सही ढंग में लेना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि हालात जो है वो मजीद खराब हो रहे हैं। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी है, क्योंकि बात बीजेपी की भी है, बात कांग्रेस की भी है, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी है और स्पेशली करप्शन की है, जिसको लेकर बीजेपी ने जब चुनावी दंगल में आए थे 4 साल पहले कहा था कि करप्शन का खात्मा किसी भी कीमत पर किया जाएगा। लेकिन कल गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने यह कहा कि करप्शन
اور ریٹس بھی بتا دی کہ کتنے ریٹس ہے. ہمارے ساتھ ارون گپتا جی بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. ارون گپتا جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. گورنر صاحب آج تک بات تو لگاتار کرتے آ رہے ہیں لیکن آج کی بات کو میں اس لیے اہم مانتا ہوں کیونکہ وزیر اعظم صاحب جموں کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں. نریندر مودی جی کا جموں کے اندر جلسہ ہے, فاؤنڈیشن سٹون رکھی جا رہی ہیں اور باتیں وہاں پر بھی کی جائیں گی. اگر گورنر صاحب یہ کہیں کہ کرپشن کے لیے ریٹس متعین کی گئی تھی, فکس کی گئی تھی, 3 سے 15% تک کمیشن مانگا گیا, انڈسٹری کو یہاں پر لانے کے لیے انڈسٹریلسٹ کو کہا گیا کہ آپ کمیشن دے دیجئے تب آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں. خود وہ یہ بات بھی مان رہے ہیں کہ کمپنسیشن SRO کی جو اپوائنٹمنٹ دینے تھے اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ ریٹ ہے. تو کیا میں یہ مانوں کہ آپ کے ٹینیور سے لے کر موجودہ سسٹم تک آج کے دن تک کرپشن پر کوئی لگام نہیں کسی گئی سرکار کی طرف سے, نہ تک گورنر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے؟ دیکھیے, ایک بات ہمیں اس وشے کو تھوڑا سا اسی طرح سمجھنا ہوگا جس طرح انہوں نے ماننیہ گورنر صاحب نے کہا. اس جموں کشمیر ریاست میں پچھلے جب سے 70 سال سے کرپشن کا جو دور ہے وہ آپ سے بھی نہیں چھپا اور کسی سے نہیں چھپا. یہاں کرپشن بہت ایکسٹریم لیول پر کرپشن JNK اسٹیٹ میں پروموٹ ہوئی ہے اور یہ جو سلسلہ ہے وہ لگاتار چلتا آ رہا ہے. اب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں, جب ہم پاور میں آئے, پاور میں آنے کے بعد جو ہم نے یہاں پہ سارا صورتحال دیکھا, جو ہم نے یہاں پہ سارا سسٹم دیکھا, جو وہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے اور اتنا زیادہ بگڑ چکا تھا کہ ایک نارمل گورننس کرنا بہت مشکل ہوگا. گورنر صاحب نے جو کہا وہ ایک نارمل سی بات ہے جس کے بارے میں شاید آپ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہمیں معلوم ہے یا سب کو معلوم ہے کہ اس اسٹیٹ میں کرپشن جو ہے وہ اتنی سیریس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا یا اس کے اوپر بڑی سختی سے انکش نہیں لگایا گیا تو ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ ہمیں معاف نہیں کریں گی. اور جو انہوں نے یہ ملیٹنسی کی بات کی وہ ہم کچھ لوگ جو ہیں, کچھ پارٹیاں اپنے پرسنل مفاد کے لیے ایک جو یوتھ ہے کشمیر کا اس کو انہوں نے ایک بلہا کے رکھا ہوا ہے, ان کو وہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور اپنی پاور کے لیے کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے جس کو ہم یہ کر رہے ہیں, یہی ینگ جنریشن کے خراب ہونے سے پورا کی پوری اسٹیٹ تباہ ہو جائے گی. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ارون گپتا جی, ایک چیز جو کافی اہم ہے اور اس پر ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو لگاتار ہمارے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ باتیں پوچھی جا رہی ہے, وہ یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے لگاتار کچھ لوگوں کی طرف سے, وہ یہ کہ جس طریقے سے گورنر صاحب نے کہا کہ 12% کمیشن جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو مانگا گیا جموں کشمیر آنے کے لیے, اور یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ آپ کے ٹینیور کو بھی اس میں لگایا گیا. تو کیا میں یہ مانوں کہ BJP کا ٹینیور بھی اتنا ہی کرپشن سے بھرا ہوا ہے جتنا میں کانگریس اور NC اور PDP کے لیے کہوں؟ آپ کو شاید اس بات کا پورا علم ہوگا کہ BJP کو سرکار میں صرف ہمیں 3 سال ہم رہے. میں پورے پچھلے 70 سال کی بات کر رہا ہوں اور پچھلے 70 سال میں جو یہ سارے کے سارے جس کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اتنے بگڑ چکے تھے الفابیٹ کہ کوئی بھی سسٹم میں کام نہیں کرتا. اور شاید یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمیں سرکار میں رہتے ہوئے سرکار سے باہر نکلنا پڑا, کیونکہ ہمیں دیکھا کہ سسٹم اتنا زیادہ چرمرا گیا ہے, سسٹم اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس سسٹم میں کام کرنا. اور بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی پارٹی جو ہم اس سب چیزوں میں بالکل بھی فرملی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی نے کرپشن کو لے کے پوری کنٹری میں جو ایک آواز اٹھائی ہے اور جو اس کے اوپر کام ہوتا ہے وہ آپ بھی مانیں گے کہ ہم نے بہت سیریسلی اس بات کو لیا ہے. گپتا جی, اگر گورنر صاحب کے پاس اتنی زیادہ ان پٹس ہیں اور لگاتار وہ کرپشن پر بات کر رہے ہیں لیکن اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی, ہم نے میڈیکل پالیسی کو دیکھا, انہوں نے رد کروایا ٹینڈر لیکن ACB کو کیس دیا گیا, انیشل سٹیج پر ہے, کوئی FIR نہیں ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ کمپنسیشن لیا جا رہا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں 12% کمیشن لیا گیا. اگر یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہے تو کاروائی کون کرے گا جب گورنر صاحب بھی ہاتھ کھڑے کریں گے جن کو نہ ووٹ بینک پالیٹکس کے ساتھ کچھ ہے نہ سیاست میں کچھ ہے؟ تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ بھی اس طریقے سے بات کریں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بے بسی کا عالم ہے, تو اسٹیٹ چلے گی کیسے؟ بات بے بسی کی نہیں ہے, آپ اس کو ذرا سمجھیے. انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے اسٹیٹ میں کہ اس اسٹیٹ کی جو گروتھ ہے یا اس اسٹیٹ کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ اتنی بری طرح سے چرمرا گیا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم کانشیسلی لوگ جو ہیں اس کو نہ سمجھیں اور یہ چیزیں کنٹرول نہ ہوں, کیونکہ ایک FIR کرنے سے یا 2 FIR کرنے سے یا 2 مچھلیوں کو پکڑنے سے جو یہ گندگی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی.
हमारा कहना ये है कि उनका कहना जो है एज ए गवर्नर जो स्टेट को हेड कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमें इसकी गहराई को समझना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मानना पड़ेगा कि ये चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं और इसके ऊपर हमें सबको कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा। तो कॉन्शियसली काम कैसे होगा जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, गवर्नर होते हुए भी काम नहीं होगा, तो सवाल तो उठेंगे ना फिर। आज तक देखिए ना, कार्रवाई ऐसा नहीं कि इस स्टेट में कार्रवाई 2 या 10 लोगों पे नहीं, कार्रवाई होने के बाद भी ये इतना सीरियस एक मैनेस है जिसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को खुद आगे बढ़ के इसको। अरुण जी, क्या मैं ये मानूं कि इसको भी एक जुमला रखा जाए कि करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है लेकिन जंग के नाम पर कुछ नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक जुमले का सवाल है वो आप बात मान के चलिए कि जिस वक्त समाज में एक कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हमको ये चीजों से बिल्कुल दूर जाना है, जैसे बहुत और बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर समाज जब कॉन्शियस हो जाता है तो उस पर एक्ट करता है। समाज का उतना ही एक्टिव होना जरूरी होता है जितना एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करती है जो कर रही है, और गवर्नर रूल में चीजें कितनी हुई, कितने नई चीजें आई और कितनी चीजें कंट्रोल हुई, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। गवर्नर साहब का जो कहना था उसको अगर हम बड़ा उसको समझने की कोशिश करें, उनका कहना ये था कि आप एक तरफ से कहते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं आती है। भाई, इंडस्ट्री इसलिए सबसे बड़ी नहीं आती क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकती, या बाकी जो ट्रेड है वो इसलिए नहीं आते क्योंकि इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए हमको सबको समझना होगा कि क्या वो कंजीनियल एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर हम दे पाते हैं जिसके लिए यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसको उसी तरह लेना चाहिए। और आई थिंक समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो लोग समझते हैं इस बात को, वो इसके ऊपर जरूर गहराई से चिंतन करेंगे कि ये जो हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी भी जम्मू से जुड़ चुके हैं क्योंकि कल जम्मू में ही गवर्नर साहब ने इस बात को कहा था। विनोद जी, अरुण गुप्ता जी की बात को आप सुन रहे होंगे कि क्या कुछ वो कह रहे थे, लेकिन इन बिटवीन लाइन एंड वर्ड्स अगर मैं देखूं, गवर्नर साहब लगातार ये कह रहे हैं कि करप्शन है। जब जेके बैंक की बारी आई थी तो आउटराइटली सब लोगों ने गवर्नर साहब की इस बात की हिमायत की थी कि और कहा था कि अब शायद कुछ बदलेगा, लेकिन बाद में हवा बहुत देखी, सजा कहीं पर नहीं देखी। उसके बाद मेडिक्लेम पॉलिसी जब आई तो एक बार फिर लोगों के अंदर उम्मीद उठी कि शायद कल्प्रिटों को बुक किया जाएगा, एक मिसाल कायम की जाएगी और कुछ देर के लिए राहत होगी। नहीं हो पाया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कल गवर्नर साहब कह रहे हैं कि अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं उनके लिए कमीशन 12% मुकर्रर की गई है। कंपनसेशन अगर ऑर्डर देना है किसी को अपॉइंटमेंट के लिए तो उसके लिए 1 लाख रुपया देना है। इस तरीके से वो खुद बता रहे हैं कि करप्शन की जड़ें कितनी मजबूत है, और खुद वो ये बता रहे हैं कि और 2 केसेस पर उन्होंने सिविल सेक्रेटरी को कहा है कि फाइल को तैयार करे। ये जो बातें वो कह रहे हैं और जो काम ग्राउंड पर हो रहा है, क्या इससे अवाम का भरोसा बढ़ेगा या घटेगा तब तक कि जब तक कोई कार्रवाई ना हो? एक और दूसरा सवाल जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट भी है, क्योंकि उमर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर साहब एक सुप्रीम पोस्ट पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, उन्हें इसका एहतराम करना चाहिए, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं ये सही नहीं है। अगर हम भी वो बातें कहें जो आपके और उनके बीच में हुई हैं तो हालात और कुछ बाहर आ सकते हैं। ये जो बयानों का सिलसिला है, कैसे देख रहे हैं? देखिए गौहर, ये जो स्टेटमेंट्स राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिए हैं, मैं चाहूंगा कि स्टेटमेंट को इन प्रैक्टिकल इन टोटो लागू भी किया जाए। खाली स्टेटमेंट देने के से कुछ नहीं होगा। जब तक कुछ एक्शंस नहीं होंगे तब तक ये यूं का यूं ही रहेगा, स्थितियां बदलेंगी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कुछ रोज पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने इस रियासत के ब्यूरोक्रेट से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कोट किया था कि एक फाइल को 4 महीने टेबल पे कैसे रखा जाता है वो हमने सीखा। हमने सियासतदानों से सीखा कि वो जो काम करते थे आज कोई वो करे तो कैसे गलत होता है। यानी उन्होंने डीप टोटली पूरा ध्यान अध्ययन किया है कि किस तरीके से यहाँ पे करप्शन बढ़ रही है। लेकिन मैं ये कहूंगा खाली स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। जब तक कोई एक्शंस नहीं होते तब तक इस तरह की इसको फिर जुमलेबाजी ही कहा जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला साहब के ट्वीट को कैसे आप देखते हैं, जो उन्होंने लिखा, प्लीज स्टॉप विद द इंसल्ट एंड स्नीक रिमार्क्स मिस्टर गवर्नर, दे डोंट बिहेव अ पर्सन, जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज रहती है लिखने की, तो ये उमर साहब के ट्वीट को कहां पर देखते हैं आप? देखिए, उमर साहब के ट्वीट जो वाजिब है उनको तो करना ही था ट्वीट, और यही उनकी लैंग्वेज होनी थी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि करप्शन जो है 2 पॉलिटिकल पार्टीज के टेन्योर में ज्यादा हुई है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेन्योर में करप्शन हुई है, और यही एक वजह थी कि अब
इलेक्शन का दौर भी आने वाला है। इस तरह से राज्यपाल सत्यपाल मलिक स्टेटमेंट देते हैं, उसका प्रभाव उनकी पॉलिटिकल पार्टी पर जरूर पड़ता है, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात गवर्नर साहब के बयान की हो रही थी, क्योंकि गवर्नर साहब का बयान जो है वो काफ़ी अहम है, और इसी बयान को देखते हुए आज हमने बीजेपी और हमने पीडीपी से भी राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ राब्ता नहीं हो पाया। ज़रा बात करते हैं सियासी जमातों के हवाले से, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का बयान भी कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पुलवामा के अंदर थे, पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, और पार्टी कन्वेंशन से खिताब के दौरान रियासत के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पार्टी इख्तिदार में आती है तो सबसे पहला काम जो होगा वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करना होगा। पहले उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद साहब फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को दोहराया कि अगर बरसरे इख्तिदार आए और अपने बलबोते पर हुकूमत बनाई तो रीजनल ऑटोनॉमी को बहाल करने के लिए पहला कदम उठाया जाएगा। और आज साउथ कश्मीर आते आते उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से यह बात कही गई कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म किया जाएगा। अक्सरियत मिली तो पीएसए को खत्म किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी दी। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि महबूबा मुफ्ती ने पार्टी बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को आने वाले इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो पब्लिक जो जम्मू कश्मीर का कानून है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसे कलअदम करार दिया जाएगा। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ 1976 में जो लाया गया था उसमें कुछ चीजें तरमीम की भी जरूरत है और उसे खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इसका काफी मिसयूज हो रहा है, तो उसे खत्म किया जाएगा। ये बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला की तरफ से जो है वो सामने रखी गई। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरीके से उनकी सियासत है उसी की वजह से आज हालात ऐसे हुए कि फिरका परस्त ताकतें जो है वो रियासत के अंदर काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सभी प्रोग्रामों को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचने नहीं देंगी और उन्हें रोकेंगी। ये उमर अब्दुल्ला का बयान था जो काफी अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं दो और बड़ी खबरों के हवाले से, क्योंकि दोनों खबरें जो है वो अहम है। गवर्नर साहब ने तो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने की बात जरूर कही है, लेकिन हमारे रियासत के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन इदारा स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी हुआ करता था। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इस कमीशन को बनाया गया था तो इस पर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ रही थी, और उम्मीद ये थी कि न सिर्फ नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लोगों के लिए एहतसाब होगा, बल्कि जो पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता है, सियासतदान, मिनिस्टर, इवन कि चीफ मिनिस्टर तक भी इसके सामने अकाउंटेबल होगा। और पहले हमने देखा कि बहुत सी शिकायतें जो है वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन के अंदर चली गई। कुछ शिकायतों के हवाले से अकाउंटेबिलिटी कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन बाद में शायद अरबाब इख्तिदार को ये लगा और साहिबे पॉलिटिक्स को ये लगा कि अगर हमने इस इदारे को मजीद मजबूत किया तो शायद उनके गिरेबान तक हाथ जा सकता है। इसीलिए इस इदारे को जिस कानून की रूह से बनाया गया उसके पर जो है वो काटना शुरू किए गए और उस कानून को तरमीम की गई, और तरमीम करते करते इस इदारे को इतना बेहस बना दिया गया कि अब ये सोमो मोटो भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अब अदालत ने भी इस पर जो है वो अपना हुक्मनामा सुनाया है कि आप सोमो मोटो नहीं ले सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो पिछले एक साल के दौरान जो कमीशन जो है वो कहीं पर उसका नाम निशान नहीं है, मेंबर्स और दीगर चीजों की कमी है। वहीं पर एक और हुक्मनामा जो अदालत की तरफ से उन पर आया कि आप सोमो मोटो भी नहीं ले सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या हमारा अकाउंटेबिलिटी कमीशन सोमो मोटो ले सकता है करप्शन के खिलाफ या नहीं, और उस सिलसिले में अब अगली तारीख जो है वो 28 फरवरी को होगी। लेकिन जब सरकार में बैठे लोग ही ये नहीं चाहते हैं कि इदारा मजबूत हो, इदारा फंक्शनल हो, इदारे की वायबिलिटी और एक्सेप्टेंस बढ़े, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन इसकी पैरवी करेगा? जरूर वकील साहब जाएंगे, एफिडेविट देंगे, लेकिन जिस तरीके से लड़ना है इस इदारे के लिए शायद उसके लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि खुद पॉलिटिक्स से वाबस्ता लोग, अरबाब इख्तिदार में बैठे लोग, हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में बैठे लोग
मिल जुल कर ये नहीं चाहते कि शायद ये इदारा मजबूत हो। अगर ये इदारा मजबूत होता तो शायद आज सत्यपाल मलिक साहब इस तरीके की बात नहीं करते, करप्शन इतना ज्यादा है। क्योंकि हमारे पास इदारा होता, इदारे ने काम किया होता, कुछ लोग जेल गए होते, तो कुछ लोगों के लिए राह भी नहीं निकलती कि अगर मैं करूंगा तो क्या कुछ हो सकता है। उनके लिए एक ब्लूप्रिंट होता कि अगर मैंने ये गलती की तो ये सजा मिलेगी। जब सजा नहीं है तो शायद रास्ते खुले हैं, यही वजह कि अभी भी करप्शन जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ तरक्याती मंजरनामा जो काफी इंपॉर्टेंट है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, और लिंगरिंग प्रोजेक्ट जो हमारे काफी सालों से प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, अब उन पर सख्ती के साथ काम किया जा रहा है। और कल हमने देखा कि इराक की तरफ से जो फ्लाईओवर रामबाग जहांगीर चौक से बनना हुआ था और आगे जाना था, उस पर सुस्त रफ्तारी के साथ काम किया गया और डेडलाइन के बाद डेडलाइन जो है वो खत्म हुई। और कल बाज़ाब्ता तौर पर इराक की तरफ से 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर लगा दी गई और कहा कि जो आपका टाइम बाउंड पीरियड था जिसमें आपको यह मुकम्मल करना था, वो टाइम बाउंड भी निकल गया है, इसलिए आपको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। यह बात भी काफी अहम थी। और चलते चलते अब जरा वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको अपडेट करते रहे। जम्मू कश्मीर का दौरा फरवरी के 3 तारीख को रियासत के दौरे पर वजीर आजम साहब आ रहे हैं। इस सिलसिले में जहां जम्मू के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है, वहीं पर बांडीपोरा के इलाके में भी बीपीओ का इफ्तिताह वजीर आजम साहब करेंगे और यह पहला इदारा होगा जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर बना होगा बीपीओ, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम साहब करेंगे। और उम्मीद की जा रही है तकरीबन 500 से 600 लोगों के रोजगार का मौका वहां पर फराहम होगा और साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी वहां पर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस इदारे के खुलने के बाद अब रियासत के अंदर बहुत से छोटे छोटे बीपीओज खुल सकते हैं जहां पर खुद रोजगार कमाने के लिए नौजवान आगे आ सकता है। तो ये बीपीओ यूनिट जो है ये मिसाली यूनिट जो है वो बताया जा रहा है और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। और इस सिलसिले में कल जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी इस बीपीओ का मुआयना जो है वो किया है और उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। चलिए, फिलहाल इशारा ये दिया जा रहा है कि प्रोग्राम को यहां पर इख्तिताम किया जाए और आपसे रुखसत लिया जाए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएंगे। हस्बे वादा और हस्बे ज़रूरत हमारी है कि आपका फीडबैक हमारे लिए मशअले राह रहता है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी आ सकते हैं और साथ साथ आप मेल भी कर सकते हैं kashmirgulistan@gmail.com पर अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने मेज़बान को दें इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:30 बजे होगी फिर मुलाकात। गर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।